Good morning. Now let us see integration by partial fraction. First, now let us see integration by partial function. In this, as you know, rational function in the form of s px px by qx, where px and qx are polynomial, where px and qx are polynomial, these are polynomial in x, and qx not equal to 0 and qx not equal to 0. So now you know this is the rational function. And now in this, if degree of the numerator, if degree of px, this degree of px, here you see, if degree of px is less than degree of qx. If degree of px is less than degree of qx, then rational function called proper function. So this rational function is called what? Proper fraction. This is called the proper. This rational function is called proper. The rational function is called. This rational function is called proper function. This rational function is called proper function. Otherwise, this will be this rational function rational function is called improper. That is proper function and improper function. Now, if the function is improper, the improper can be reduced to proper function. The first, if the rational function is improper, then improper function can be reduced in proper. Before finding the integral, improper function can be reduced to proper function by long division process. That is the improper function can be reduced to proper, by long division process. And then you do the integration. The how you this reduced as this improper function. If the function is improper, then you can write this improper as, we can write this px by qx if it is improper, then we can write px by qx px by qx as
tx plus p1x अपॉन qx। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आगे हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करेंगे और इसको इस फॉर्म में हम लिखेंगे tx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे tx प्लस p1x by qx। p1x and qx are polynomial in the form of in the function in x, and this function is what? Proper. So now we can change the improper function in the form of proper and then we integrate. So there are some of the functions of in the form of proper, and then let us see how will you change that in the form of the partial fraction. So now let us see. Now let us see form of rational function. Here you write form of rational function, and next you write form of the partial fraction. Form of the partial fraction. First, if the function of the form px plus q on x minus c and x plus b, where a and b are constant, then we can write this in where a is not equal to b. We can write in this a x minus a plus b x minus b. So we can write in this form x plus b. So we can write here is the form of rational function. This is in the rational form of rational function, and this is the partial function. So in the form of partial function, a and b is to be determined. So now you change in this form, and then we can determine a and b. So this is the change in the partial fraction. This will be known as, if you change a rational function in this form, so this process is known as partial fraction. This is the partial form. So now you change in this. The next, now if you can write in this second, now if you can write this second, px plus q is the function in this form, and x minus a square, so we can write this at a upon x minus a plus b upon x minus a whole square. Now you remember this, we can change in this form. So now next, third, we can change this in this form. If this is px square plus qx plus r, this and here this will be given. Now here this will be given x minus a, x minus b, x minus c. Then we can change this in this form, a on x minus a, b x minus b, c x minus c in this form. So we can write this function in this form. If this is in this form, 4 px square plus qx plus r, and in this form x minus a whole square x minus b. So then you can write this as a x minus a plus b
x minus c whole square plus c plus c x minus b. We can write this in this form, and that is if the function in this form ex square plus qx plus r, and here you write x minus c ex square plus bx plus c. In this form, then you can write e upon x minus c plus bx plus, here you can write bx plus c, and you can write what? X square plus bx plus c, x square plus bx plus c. So now in this last, here you remember if the numerator is the linear function and the denominator is the quadratic. If the denominator is the quadratic polynomial, then you can write the numerator in this form bx plus c upon x square plus bx plus c. So you can write in this form. Okay. Now let us see first question of exercise 7.5. So now in this first question is given integrate x upon x plus 1 x plus 2 dx. Integrate this. Now integrate this. So to integrate this, first now you change this in the partial fraction. So now let us see how you change this in the partial fraction. Now we can see this x plus 1 x plus 2, we can write a upon x plus 1 plus b upon x plus 2. Now let us see how you determine a and b. चलिए देखते हैं a और b को हम कैसे डिटरमिन करेंगे. इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो सबसे पहले ये देखते हैं पहले मेथड से. इसको हम a अपॉन एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, b अपॉन एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं. a और b कांस्टेंट है. अब हम देखते हैं कि a और b को कैसे डिटरमिन करेंगे. हम x प्लस 1 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा हमारा x. यहाँ x प्लस 1 से डिटरमिन करेंगे, a आ गया x प्लस 2 और प्लस यहाँ b x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ बचेगा x प्लस 1. तो देखिए एक्चुअल मेथड तो है कि हम x के कोफिशिएंट को इक्वेट करें और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करें और a और b का वैल्यू फाइंड आउट करें. लेकिन मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ जो कि एथेंटिक नहीं है. एथेंटिक क्यों नहीं है? जब हम यहाँ x का वैल्यू 2 रखेंगे -2 तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा. इसलिए मैं एक नॉन एथेंटिक मेथड बता रहा हूँ. लेकिन हमें a और b का वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है, तो उससे भी a और b का वैल्यू एग्जैक्ट आएगा. तो हमें a और b का सिर्फ वैल्यू से मतलब है. a और b का वैल्यू देखा जाता है और कुछ नहीं देखा जाता. ठीक. तो हमें एग्जैक्टली a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है. हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन. इसमें हम x का ऐसा वैल्यू रखें कि या तो a टर्म 0 हो जाए या तो a टर्म. इसमें देखिए अगर हम x इक्वल टू -1 रखें, यहाँ हम यहाँ संक्षिप्त में करते हैं e. अगर हम यहाँ रखते हैं x, यहाँ हम करते हैं राइट हैंड साइड में, इधर हम करते हैं
नाउ इफ यू राइट, यहाँ हम करते हैं, अगर हम x का वैल्यू, नाउ इफ वी राइट x इक्वल टू -1, तो अगर x का वैल्यू -1 रखें तो ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ x के स्थान पर -1 रखेंगे तो e हो जाएगा और x का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या हो गया -1। एंड इफ वी राइट, we can write x इक्वल टू -2। अगर x के स्थान पर -2 रखते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ -2 रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, इस साइड में आ जाएगा -b। ये क्या रखेंगे, x के स्थान पर -2 रखेंगे, -2 + 1, तो -2 + 1 क्या होगा -1 और -b हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा -2 x का वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू -1 हो गया, b इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, अब a और b का वैल्यू रख देते हैं, हमारा इंटीग्रल ये हो जाएगा, हमारा इंटीग्रल हो जाएगा, इसके बाद इसका इंटीग्रल हो जाएगा, फर्दर हमारा इंटीग्रल हो जाएगा, a के स्थान पर हमारा -1 हो जाएगा, -1 x + 1 और b के स्थान पर +2 x + 2। ये हमारा स्प्लिट अप हो गया। अब हम इसका इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रल ऑफ x + 1 x + 2 dx। ये हमारा हो जाएगा क्या फंक्शंस, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ हमारा आ जाएगा -1 x + 1 और +2 x + 2 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका -1 x + 1 का इंटीग्रल -log mod of x + 1 + 2 log mod of x + 2 + c। इसको हम लिख सकते हैं log mod of x + 2 होल स्क्वायर x + 1 + c। तो इस तरह से ये हमारा इंटीग्रल हो गया। ठीक, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट (3x - 1) upon x + 1 x + 1 x 3 integrate this x - 1 x - 1 x - 2 x - 3 x - 1 x - 2 x - 3 dx। इसको भी इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो चलिए पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक, चलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। नाउ 3x - 1 on x - 1 x - 2 x - 3। इसको भी हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, a on x - 1 b x - 2 and c
x माइनस 3 मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 1, यहाँ हो जाएगा a x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं। वैल्यू अब मैं एथेंटिक मेथड से रख सकते हैं, नॉन एथेंटिक मेथड में हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को दोनों तरफ कंपेयर करते हैं और एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और नॉन एथेंटिक मेथड हमें सिंस भी our interest is to find the constant ABC, then we can find in this way also. So now in this here, now if you see, if you put first, you put x equal to 1. So now if we can put, if we can put x equal to 1, x equal to 1 देखिए रखेंगे तो b पार्ट 0 हो जाएगा, c पार्ट 0 हो जाएगा, a में 1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1, और इसमें 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, और इसमें 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो -2 और -1 तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a इक्वल टू, अब यहाँ रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा हमारा 2, तो दैट इज द 1, तो a इक्वल टू 1 हो गया हमारा, ये वैल्यू आ गया हमारा a इक्वल टू 1। तो इन दिस वे यू डिटरमिन a इक्वल टू 1। नेक्स्ट नाउ यू पुट x इक्वल टू 2, सेकेंड put x equal to 2, put x equal to 2, x equal to 2 रखेंगे तो a टर्म 0 होगा, a का टर्म 0 होगा, b का टर्म 0 होगा, और इसमें रखेंगे a का टर्म 0 हो जाएगा, b का टर्म 0 हो जाएगा, a का टर्म 0 हो जाएगा, b का टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3b जी आएगा, और यहाँ रखेंगे 2 3 6 एंड 1 5, तो 5 आ जाएगा, तो b का वैल्यू आ जाएगा क्या 3, b का वैल्यू आ जाएगा 1/3। ठीक, इसमें वैल्यू रखते हैं, यहाँ x का वैल्यू 2 रखते हैं, a हो गया 0, c हो गया 0, यहाँ 2 रखते हैं 1 हो जाएगा, यहाँ 2 रखते हैं -1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -b। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा -b, ये हो गया हमारा -b, और इधर हम 2 वैल्यू रखते हैं तो 2 3 6 -1 5, तो b इक्वल टू हमारा हो गया -5, b इक्वल टू हो गया -5। ठीक, b इक्वल टू हो गया हमारा -5, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू -1, यहाँ हमारा b का वैल्यू आ गया -5। ठीक, अब हम दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये तो हमारा b का वैल्यू है, अब हम c का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमें कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करना पड़ेगा। c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक, क्या c का वैल्यू देखिए, कांस्टेंट टर्म यहाँ 3, हाँ यहाँ x का वैल्यू 3 रखें, तो नाउ पुट
here we put x equal to 3, यहाँ x equal to 3 रखिए, b का वैल्यू -5 आ गया, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3 - 1, 3 - 1 2 हो गया और 3 - 2 1 हो गया 2c, इधर आ गया हमारा 2c और यहाँ वैल्यू रखेंगे 9, 9 - 8 हो गया, तो c का वैल्यू हमारा क्या आ गया 4, यहाँ हमारा c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक, तो c का वैल्यू क्या हो गया 4, तो दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट c इक्वल टू 4, इम्पॉर्टेंट है 4, ये जरूरी नहीं है कि आप इस पोर्शन को दिखाएं, ये पोर्शन तो मैं आपको जानने के लिए कर दिया, ये पोर्शन आप वर्क पर भी करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ये पोर्शन आपको शो करने की जरूरत नहीं है और शो करना चाहते हैं तो शो भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा एग्जैक्टली क्या हो गया, इस पोर्शन से अगर हमें देखें तो एग्जैक्टली क्या हो गया, ए का वैल्यू 1 आ गया और बी का वैल्यू -5 आ गया और सी का वैल्यू 4 हो गया। तो हमारा इंटरेस्ट है इस वैल्यू से, अब हमारा इंटरेस्ट इससे नहीं। तो नाउ वी कैन फाइंड दिस वैल्यू, a equal to 1, b equal to -5, c equal to 4. So then we can write this what? These are the value. So we can write integral of this, integral of 3x - 1, x - 1, x - 2, x - 3 dx equal to integral of 1 upon x - 1 dx, 1 upon x - 1 dx minus integral of 5 x - 2 dx, that is 4 plus integral of 4 x - 3 dx. So now we can write the integral of this. So let us see integral of this, log of mod of x - 1 minus 5 log mod of x - 2 plus 4 log mod of x - 3 प्लस c, तो a हो गया हमारा इंटीग्रल ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x - 1 स्क्वायर x प्लस 2। ये थोड़ा सा इसमें चेंजेज है, दूसरे मेथड से है। तो नाउ फर्स्ट वी चेंज दिस इन द पार्शियल फ्रैक्शन। तो नाउ and you see, now we can write x upon x - 1 whole square x plus 2. So now first we change this in the partial fraction. So now how will you change? A x - 1 plus b x - 1 whole square plus c x plus 2. So now we can write the partial fraction in this way. So we can write this partial fraction in this way. ठीक? Okay. So then we can write this partial fraction in this way. So now multiplying this, the multiply we get what? X. And then here you write x - 1, you write a x - 1 x plus 2. Then b x - 1 whole square. We get what?
x plus 2, and here is the x plus 2 plus c x minus 1 whole square. In this way, c x plus 2 cancel, we get in this. Okay. So now in this, what can you do? Write the value in this and find the determine A, B. The first here you see, if you write x equal to 1, if you write x equal to 1, then how do you calculate? In the place of x equal to 1, now if you write x equal to 1, here you write 1, then this will be 0, this will be 0. 1, 2, 1, 3, 3b, that is 3b. It means that 1 by 3, b equal to 1 by 3. In this way you can get the value of b. The b equal to 1 by 3. In this way we can find the value of b. And now if you write x equal to minus 2, here you write x equal to minus 2. तो this part x equal to minus 2, a वाला स्टेप 0 हो जाएगा, a वाला स्टेप 0. तो minus 2 and minus 1, minus 3, तो minus 3 का स्क्वायर 9, तो 9c, here is the 9c, and here is minus 2. The c equal to what? Minus 2 by 9, that will be equal to c. The c equal to what? Minus 2 by 9. So this c equal to minus 2 by 9. B equal to this. And c equal to this. So this is the value of c. And then how do you find the value of this? You get the value of c and value of this. So to get the value of b, value of a, to get the value of a, now we equate the constant. So to get the constant term, here you get minus 2. So here you write minus 2b. 2 into 1, that is minus. The equating the coefficient of constant term. इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म इन द बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ हम कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे. तो चलिए इक्वेट करते हैं. तो माइनस 2a, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2b प्लस 2b, एंड यहाँ क्या हो जाएगा? 1. तो c दैट विल बी इक्वल टू 0. 1 मीन्स c, तो दैट विल बी इक्वल टू 0. सभी का वैल्यू रखते हैं. ए का हमें डिटरमिन करना है वैल्यू, माइनस 2a प्लस 2b. बी का वैल्यू है 1 बाई 3, ये हो गया 2 बाई 3. सी का वैल्यू है माइनस 2 बाई 9 इक्वल टू 0. तो ए वैल्यू हमारा हो जाएगा माइनस 2 बाई 8 इक्वल टू 2 बाई 9 माइनस 2 बाई. इसको हम कैलकुलेट करते हैं. ये हो गया हमारा 6 माइनस 2 बाई 9. 6 माइनस 2 बाई 9 माइनस 2 बाई 9 हो गया. 2 बाई 9 माइनस 2 बाई, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया 2 माइनस 6, ये हो गया माइनस 4 बाई 9. ये हो गया हमारा दैट इज 2 बाई 9. ए का वैल्यू आ गया हमारा 2 बाई 9. तो 3 वैल्यू हमारा आ गया. ठीक. तो ए का वैल्यू हमारा हो गया 2 बाई 9. अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2
dx। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ e का वैल्यू कितना है 2/9, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2/9 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 1/3। यहाँ हम लिख सकते हैं 1/3 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। और c का वैल्यू क्या है -2/9। c का वैल्यू हमारा आ गया माइनस इंटीग्रल ऑफ 2/9 x प्लस 2 dx। ये हमारा वैल्यू है। ठीक, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2/9 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर dx माइनस 2/9 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 2 dx। अब हम इसका इंटीग्रल करते हैं। ठीक, तो चलिए इंटीग्रल करते हैं। ये हो गया हमारा 2/9 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 और x माइनस 1 ये हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3 x माइनस 1। ये हो जाएगा हमारा 1/3 x माइनस 1। ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 टू द पावर -2, इसका इंटीग्रल करेंगे तो 1/3 x माइनस 1 और फिर इसका हो जाएगा माइनस 2/9 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस। ठीक, ये हो गया इसका इंटीग्रल। अब इसको तो कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/9 log of 2/9 log of mod x minus 1 x plus 2। ये log का फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा -1/3 x minus 1 प्लस। ये हमारा इंटीग्रल हो गया। ठीक, x³ प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 अपॉन x² माइनस 1। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस। हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। अब ये देखिए, इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा, इसमें आप देखेंगे तो इसका न्यूमरेटर का डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री से अधिक है, तो इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सबसे पहले बताए हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो चलिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए
हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। लॉन्ग डिवीजन मेथड एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे एक्स टाइम्स, ठीक। तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक। सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2x प्लस 1। तो ये हमारा चेंज हो गया फ्रैक्शन ए। ये फ्रैक्शन किस फॉर्म में चेंज हो, नाउ वी कैन राइट एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 in this form x plus 2x plus 1 upon x square minus, इसका इंटीग्रल हम कर सकते हैं इसको अगेन। नाउ कंसीडर, फर्स्ट वी कंसीडर दिस वन 2x plus 1 upon x square minus, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 और x माइनस 1 x प्लस 1। इसको हम चेंज करते हैं, ये हमारा हो गया a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x प्लस 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ब्रेक करते हैं। आप ब्रेक कर चुके हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 a x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ, और फिर b, यहाँ b करते हैं और x प्लस 1 कैंसिल होगा, x माइनस 1 आएगा। x के स्थान पर 1 लिखेंगे, ये 0 होगा, 1 1 2a, ये 2a होगा, इसका वैल्यू 1 रखते हैं, x का स्थान पर 1, तो 2 and 1 2 and 1 3 हो जाएगा, दैट विल बी 3/2, तो a इक्वल टू 3/2। और फिर x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे, ये 0 आएगा, ये माइनस 1 माइनस 2b हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, और इधर माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 और 1 माइनस 1 आ जाएगा, b इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2। ये वैल्यू आ गया b का, ये वैल्यू आ गया a का वैल्यू आ गया और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू 1/2 आ गया और a का वैल्यू 3/2। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, इसमें वैल्यू रखेंगे, हमारा फ्रैक्शन ए हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 1। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इस फ्रैक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ हमारा हो जाएगा इंटीग्रल x dx प्लस, इसको चेंज करके हम इस फॉर्म में लिखें, हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रल 3/2 x माइनस 1 dx प्लस 1/2 x प्लस 1 dx इंटीग्रल। अब हम इसका इंटीग्रल करते हैं, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा x² 2 प्लस 3/2
log mod of x minus 1 plus 1 by 2 log mod of x plus 1 plus c. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12. Find the integral of this way. Find the integral of 1 upon x to the power n plus 1 dx. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके सब्स्टिट्यूट कई बार सीबीएसई एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए. अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इस प्रकार में देखिए, x टू द पावर n है तो जो भी इसका पावर है, x का पावर है, उससे एक पावर कम से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसमें x टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by x to the power n minus 1. x to the power n minus 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ यू गेट x to the power n minus 1. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x में, इसमें x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x to the power n हो जाएगा x to the power n plus 1 dx. x में x to the power n का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x to the power n dx. Now in this put x to the power n plus 1 equal to t. Let t equal to x to the power n plus 1. The dt equal to nx n minus 1 dx. Here is the nx x to the power n minus 1. Multiply x to the power n. The nx n minus 1. It means that here you write 1 upon n. And nx 1 upon n लेंगे क्या हो जाएगा nx n minus 1 dx. तो nx n minus 1 dx के स्थान पर क्या लिखेंगे dt. ये हो जाएगा इंटीग्रल dt अपॉन x to the power n की जगह हमारा क्या हो जाएगा t minus 1 और x to the power n plus 1 की जगह t dt. ठीक, अब इसको हम स्प्लिट अप करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से. ये हमारा हो जाएगा 1 upon n इंटीग्रल ऑफ इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट अप करेंगे, पार्शियल से फ्रैक्शन से कर सकते हैं, एडजस्ट करके कर सकते हैं. इसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 1 minus t minus 1 minus 1 upon t. ये हो गया dt. देखिए यार t हो गया माइनस t कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 upon t minus 1 t आ जाएगा. इसको आप डायरेक्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से. आप इसका आप इंटीग्रल कर सकते हैं. इसका इंटीग्रल हो गया 1 upon n log mod of t minus 1 minus log of t प्लस. अब t का वैल्यू रख दीजिए. t का वैल्यू है हमारा x to the power n plus 1. इसको हम a भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं 1 upon n log of t mod of t minus 1 upon t plus c. t का वैल्यू रख दीजिए 1 upon n log t का वैल्यू यहाँ क्या है, t का वैल्यू x to the power n plus 1 है, कैंसिल हो जाएगा. यहाँ बचेगा x to the power n और t के स्थान पर x to the power n plus 1 plus a हो गया आपका आंसर.
अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Now integrate cos x 1 minus sin x 2 minus sin x dx। इसमें सबसे पहले आप sin x को t ले लीजिए। लेट t इक्वल टू sin x dt इक्वल टू cos x dx। सभी का वैल्यू रख दीजिए। ये हमारा हो जाएगा dt cos x dx के स्थान पर dt, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के अनुसार स्प्लिट अप करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट अप करेंगे तो ए हमारा हो जाएगा, या तो आप एडजस्ट कर लीजिए या तो पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट अप करिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट अप करेंगे तो ए हमारा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस टी एंड माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी dt। सिंपल है। 1 माइनस 2 माइनस टी माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस टी mod ऑफ माइनस log ऑफ 1 माइनस टी प्लस सी। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2, टी का वैल्यू रख दीजिए 2 माइनस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ए आपका हो गया इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका डबल पावर है, ये पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो ये डबल पावर है, इसलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम एक्स स्क्वायर के स्थान पर कोई नेक्स्ट वेरिएबल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के स्थान पर यहाँ नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं। इधर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम वाई लेते हैं और इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा वाई प्लस 1 और वाई प्लस 2, वाई प्लस 2, वाई प्लस 3 और वाई प्लस 4 dx। और इसका देखिए, इसको जब हम देखेंगे तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हम इसको कंसीडर करें, ऊपर हम कंसीडर करते हैं तो y प्लस 1 y प्लस 2 पे हो जाएगा वाई स्क्वायर एंड 2 एंड 1 3y प्लस 2, और नीचे हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर 4 एंड 3 7y एंड प्लस 12। तो हम ये देखते हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than or less than, greater than equal to denominator, so that it is improper fraction. The first, what can you do? Change this in the proper fraction. So now let us see. First, change this in the proper fraction. To change this in the proper fraction, now let us see. Divide this y square plus 3y plus 2 by long division process with y square plus 7y plus 12. 1 times y square plus 7y plus 12. Change the sign. Cancel. This will be minus 4y and this will be minus 10. Now take minus 2x common,
तो 2y plus 5. So we can write this function as, now we can write this function as y square plus 3y plus 2, and this function y plus 3, y plus 4, we can write this as, we can write this in the form of what? We can write this in the form of this one 1 minus, this is the 2y plus 5 upon 2y plus 5 upon y plus 3 and y plus 4. So we can write this in this form. Okay. Take the 2 as outside. So we can write this in this form. So now here, now we can change this in this form, so that we can write 1 minus 2. Here you write 2y plus 5 upon y plus 3 and y plus 4 in this form. First we consider this proper fraction and find their integration. So now first we consider this 2y plus 5 upon y plus 3 and y plus 4. Y plus 4. Now change this as in the form of partial fraction. So this will become what? A. This will become A upon y plus 3 plus b upon y plus 4. So now take this 2y plus 5 or multiply y plus 3y plus 4 in the both sides, then you get 2y plus 5 a, y plus 3 here you get y plus 4 आ जाएगा यहाँ, फिर प्लस b, तो y plus 4, यहाँ क्या बचेगा, y plus 3 आ जाएगा. ठीक, तो इस तरह से हमारा y plus 3 आ गया. ठीक, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किए है, फिर इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में इसको चेंज कर, तो 2y plus 5 है. अब हम यहाँ पुट करते हैं y इक्वल टू -3, तो -3 रखेंगे तो ये 0 आ गया, और y इक्वल टू -3 तो ये हमारा a आ गया, यहाँ y इक्वल टू -3 तो -6 आ गया, तो ये -1 हो गया, तो ये हमारा आ गया -1. अब b डिटरमिन करते हैं, यहाँ y इक्वल टू -4 रखते हैं तो 0 आ गया, -4, तो ये हमारा हो गया -b हो गया, और यहाँ y इक्वल टू -4 रखते हैं तो -8 हो गया, और a हो गया हमारा -3, तो a हो गया हमारा -1 और b हो गया 3. तो a और b का वैल्यू रखते हैं, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, a का वैल्यू -1, ये हो गया 1 अपॉन y प्लस 3, और b का वैल्यू हो गया 3 अपॉन y प्लस 4, इस तरह से. ठीक, तो हमारा पूरा इंटीग्रल हो गया. अब हम y के स्थान पर x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4. तो अब यहाँ से इस फंक्शन को हम पूरा लिख सकते हैं. अब इसको चेंज करके
चेंज करके हमें लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ हमारा 1 आया है, हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dx। माइनस आया है तो हमारा हो जाएगा +2 आएगा, और इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 3 2x² + 3 dx। फिर हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 ये हो गया हमारा 2 इंटीग्रल ऑफ 3/x² + 4 dx। ये आ गया इंटीग्रल। अब इसका इंटीग्रल हम फाइंड आउट करेंगे। तो x आ गया, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इसमें हम रिड्यूस कर दिए, अब इसका हम इंटीग्रल करते हैं। तो ये हमारा हो गया x प्लस ये हो गया tan इनवर्स 1/a, ये क्या हो गया √3, तो 1/√3 और e वैल्यू हो गया 2/√3 tan इनवर्स x/e, ये क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा हमारा √3 का होल स्क्वायर, तो x² और फिर यहाँ हमारा हो जाएगा -2 1/e, e क्या हो जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 1/e tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 3 tan इनवर्स x/e, 2 कैंसिल हो गया +c। अब हमारा रिजल्ट आ गया x + 2/√3 tan इनवर्स x/√3 -3 tan इनवर्स x/2 +c। हमारा जो रिजल्ट आ गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक, तो सबसे पहले एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज है, x² के स्थान पर हम y लिखेंगे, x² के स्थान पर हम y लिखेंगे, और फिर इसको हम पार्शियल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जो फिर जो प्रॉपर पोर्शन आएगा उसको इम्पार्शियल, प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे जैसा कि हम इंटीग्रेशन करते हैं, ए बी का वैल्यू डिटरमिन करेंगे, फिर ऐसे यूजुअल इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज 7.5 समाप्त होता है, और आप वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और हर तरह के क्वेश्चन इसमें मैं कर दिया हूँ, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थैंक यू।